صرف یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا اٹھا رہے ہیں, کس طرح سے اٹھا رہے ہیں, وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں ٹھیک ہے جی, جم میں گھوڑا بننا ہے, گدھا نہیں بننا. وزن گدھا بھی بڑا اٹھاتا ہے. نہیں, فرق یہ نہیں پڑتا کتنا اٹھا رہے ہیں, کیسے اٹھا رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ طریقے سے. یس. سارا دن فاسٹنگ کی, ابھی 4 انڈے کھا کے آ رہا ہوں. واہ واہ, زردی سمیت. کاربز نہیں لیے میں نے. نہیں ایسے ڈاکٹر صاحب آپ کاربز کو دشمن سمجھتے ہیں؟ نہیں, ابھی ذرا شرٹ کر رہے ہیں. اچھا اچھا, ابھی دشمن ہے. ہم کاربز کو دشمن ہیں, ہم انسولین ہائپر انسولینیا کو دشمن سمجھتے ہیں. یس. اچھا, یہ ہم لائٹ ویٹ جا رہے ہیں نا, تو لوگ سمجھتے ہیں کبھی کہ یار لائٹ ویٹ اور ہیوی ویٹ کیا کرنا چاہیے مسل گروتھ کے لیے. فیلئر کسی بھی ہٹ کر رہے ہیں تو اوبویسلی مسل فائبر ٹیئر کر رہے ہیں. باڈی ٹائم انڈر ٹینشن, ایگزیکٹلی, کتنے ریپس کر رہے ہیں, کتنے سیٹس کر رہے ہیں, ویٹ. اچھا والیوم جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, تو والیوم آپ ریپس بڑھا کے بھی بڑھا سکتے ایگزیکٹلی, سیٹس بڑھا کے بھی بڑھا سکتے, کسی طرح بھی بڑھا. انٹینسٹی آپ بیچ میں سیٹس فٹیگ نہیں مسل کو. ایگزیکٹلی, آن پوائنٹ ہونا چاہیے. گوئنگ بیک اینڈ فورتھ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اسٹرینتھ میں بہت زیادہ, اگر صرف اسٹرینتھ بلڈ کرنی ہے تو اس میں تو آبویسلی, لیکن ہاں ہیوی جانا پڑتا ہے. ہائپرٹروفی میں تو ہاں اتنے ویٹ کا ایسا ایگزیکٹلی آپ نے اسمارٹلی ٹرین کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ناظرین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ورک آؤٹ میں ہم نے نا دونوں رکھے ہیں. دیکھیں پہلے لائٹ ویٹ کیا ہے, اب ہیوی ویٹ کیا ہے. کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ ہم نے ہیوی جانا تو ہیوی میں جانا ہے, اس وقت لائٹ جانا ہے تو لائٹ جانا ہے. چیسٹ کو مکمل طور پہ ٹرین کرنا ہے. ایگزیکٹلی, ڈیمولش کرنا ہے مسل کو. اور ابھی سے دیکھیں باڈی بلڈنگ کی یہی خوبصورتی ہے نا کہ بہت سارے لوگ صرف ویٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ابھی بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے ہم نے اتنا ویٹ نہیں اٹھایا, لیکن یقین جانے مسل فائبر جو ہے نا, ایگزیکٹلی, کیونکہ انہیں پتہ چل رہا ہے, کنیکٹڈ ہے مائنڈ مسل کے ساتھ, اس لیے. اور زیادہ تر ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ چیسٹ ہی ہٹ ہو. یس. چیسٹ کتنی پمپ ہوئی ہے کرے دکھائے جی. مجھے ٹیبل شیل کی ضرورت نہیں چیزیں رکھنے کے لیے. یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیں بھائی, چیسٹ اور بھی کام کرے. کیا بات ہے.
थर्ड एक्सरसाइज है इंक्लाइन बारबेल प्रेस, फिर फ्लैट किया है, फिर अभी इंक्लाइन डंबल प्रेस है, फिर हो जाएंगे फ्लैट डंबल प्रेस, फिर हो जाएगा इंक्लाइन डिक्लाइन केबल क्रॉस ओवर, और आखिर में हो जाएगी पुल ओवर, और हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह पास। व्यूअर्स जरा रेंज ऑफ मोशन चेक करें कि फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ हम जा रहे हैं, कोई डंडियां नहीं मार रहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो, हम हैवी नहीं जा रहे, हम महसूस कर रहे हैं एग्जैक्टली इनसाइड वो महसूस कर सकते मसल हैं के कि हम महसूस अंदर। कर रहे हैं। अब हमारी तकलीफ हमारे चेहरों पे देख लें। ये लें डॉक्टर साहब, जा 60 पे भी सकते हैं, और लेकिन एक मैसेज है आप सबके लिए, उनको टारगेट करें जरा, सामने उनको जरा करें, ये और बेउस्तादे ना रह जाना, उस्ताद का होना जरूरी है, इनको टारगेट करें। उस्ताद बहुत जरूरी है। फायदा एग्जैक्टली हो जाएगा, टाइम जाया नहीं होगा। और उस्ताद पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी तो है। ये सामने जो है ना, आपको दो ट्रेनर्स यानी कि उस्ताद नजर आ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, आप इसको पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये उस्तादों के उस्ताद हैं, ठीक है? जोर। जब मैं कहता हूँ बस करो, वहाँ से रैप शुरू काउंट स्टार्ट हो जाएगा। वो मेरे फैन है बहुत आला। शाबाश, गुड जॉब, शाबाश, वेरी गुड। व्यूअर्स आप देख लें कि मतलब पोस्चर क्या है लगाते हुए, वर्कआउट करते हुए ठीक पोस्चर है, ठीक क्या है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेल्ट्स एंगेज्ड हैं, चेस्ट एंगेज्ड है, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। टू मोर। सिर्फ पेक्स को टारगेट कर रहे हैं हम। ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बेंच के ऊपर लेट जाते हैं, जैसे बेड के ऊपर बेंच लेट देख जाते लें हैं। जरा गौर से दिखाएं, बेंच हाँ जी। मुकम्मल स्ट्रेट नहीं है, एग्जैक्टली थोड़ा सा हमने एंगल रखा है, हल्का थोड़ा सा सा ऊपर incline है। लेवरेज है ऊपर की तरफ। मजा आ गया। तो बेंच के ऊपर आपने जैसा लेट है, नहीं जैसा। जाना, खत्म नहीं हो जाना। आपने एक फॉर्म के साथ लोअर बैक आपकी हल्की सी हवा में होनी चाहिए, पाँव के थ्रू एनर्जी ड्राइव करनी है आपने पूरी, एक पूरा, क्योंकि एक कंपाउंड मूवमेंट है, पूरी बॉडी एंगेज होती है इसमें। ये मेरे पांव जमीन पे जमे हुए हैं, ठीक है, और चेस्ट ये मैंने एंगेज कर ली है, डेल्स नीचे कर लिए, पेक्स एंगेज कर लिए, ये फोर एक्सरसाइजेस डन। इधर से हुआ थोड़ा सा, लेकिन रह गई है, नहीं वैसा पेन नहीं है, पेन केबल क्रॉस ओवर रह गई है, वो भी डिफरेंट, दो डिफरेंट वेरिएशन से हम करेंगे, तो देखते रहे वर्कआउट इंशाल्लाह। तो जनाब, एक तो मैं जो है ना मिसकंसेप्शन को क्लियर कर दूं, एक मिथ कि वेट ट्रेनिंग से आप आर्नल्ड बन जाएंगे, भले वो लड़की होगी या लड़का होगा या कोई भी होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। डॉक्टर साहब को, मुझे, सबको, हमको ट्रेन करते हुए सालों हो गए हैं, हम उस लेवल को हिट नहीं कर पाए, आप कैसे हिट कर पाएंगे? वेट ट्रेनिंग दिन में आर्नल्ड बन जाएगा, एक दिन में आर्नल्ड नहीं बनेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, यूजुअली मैं ना लड़कियों को जो है ना, वो जब मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं तो उनको मैं इस तरफ इंकरेज करता हूँ कि यार वेट ट्रेनिंग की तरफ आए आप, क्योंकि इट्स हेल्दी। मर्द का के हार्मोन डिफरेंट एग्जैक्टली, डिफरेंट एग्जैक्टली। मर्द जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को डिफरेंट रिस्पॉन्स Yes, करेगा, exactly. फीमेल जो है, लेकिन एक जो अच्छी बात Exactly. जो कॉमन होगी, एग्जैक्टली, मसल दोनों के मजबूत होंगे, हाँ। ताकत दोनों में आएगी। स्ट्रेंथ तो कौन मतलब है जो हमारा स्ट्रेंथ है। ताकतवर नहीं होना चाहता भाई, चाहे मर्द हो चाहे औरत। क्यों आपको सेल्फ डिफेंस अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल कोई सही आपको बात है। Yes. हैं? खाली कार्डियो ना करें। ना, कार्डियो से खत्म हो जाते हैं बस।
ये जो अभी हमने वर्कआउट किया है ये मर्द और औरत दोनों के लिए effective है। सिर्फ वेट्स का डिफरेंस होगा, फॉर्म बेहतरीन यही रहेगी एग्जैक्ट एक्यूरेट। तो ये था आज का चेस्ट का वर्कआउट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो बनाने का मकसद आपको समझाना है, सिखाना है, अवेयरनेस देनी है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा वेट उठाने से फ़ायदा नहीं होगा, सही तरीके से एक्सरसाइज करें। तो आज के भी जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वर्कआउट ये नहीं है कि आप कितना वज़न उठा रहे हैं, आप कैसे उठा रहे हैं। और इसमें यकीन जाने के चेस्ट जो है वो पंप हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता हम में और एक मजदूर में फ़र्क तो होना चाहिए ना डॉक्टर साहब। यस बिल्कुल, देखिए सिर्फ वेट उठाना नहीं है, सिर्फ आपने कैलोरीज जो है बर्न नहीं करना। हाइपरट्रोफी की अगर हम बात करते हैं, मसल को बिल्ड करने की बात करते हैं, एस्थेटिक्स की तरफ जाना है, आपने प्रॉपर फॉर्म्स का, प्रॉपर एंगल्स का ख्याल रखना है। एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट कि इंजरी से भी बच जाए। एग्जैक्टली लॉन्जेविटी के लिए हमारे एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे लोग जोश में आके ईगो वजन तो उठा लेते हैं जी, लेकिन फिर ईगो लिफ्टिंग चुप पड़ जाती है, दर्द हो जाता है। कभी कभी स्ट्रेंथ के लिए ठीक है, अगर आपने अपने पूरी वर्कआउट की रूटीन में कोई स्ट्रेंथ का डे रखा हुआ है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ जिम वजन उठाने के लिए आते हैं ना और आप ये नहीं देखते कि आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका फिर फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगली वीडियो किस वर्कआउट की बनवानी है आपने हमसे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम नेक्स्ट वीडियो उसी वर्कआउट सेशन की बनाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।